Welcome to the show, Maryam. Thank you for having me again, Richa. How are you doing? You look lovely. You too. So guys, हम लोगों ने coordinate भी की अपनी wardrobe. हम लोगों ने actually नहीं की. Black and white हो गई. थोड़ा सा I just kind of give you, I might wear beige and black. Beige and black. अच्छा तो क्योंकि आज हम लोग specifically बात करेंगे winter styling की, but before that, Maryam, हम लोगों ने जो last segment किया that did really well. हमने sustainability की बात भी की, and a lot of people asked me wardrobe specialist होती क्या है, उसका काम क्या है? You were missing a very key word here, wardrobe solution. Solution specialist. Sorry, yeah. So the solution is the key. A wardrobe solution specialist is not a stylist, not a designer. There's somebody who helps you find solutions in your own wardrobe, given your own life. Yes. Whether it's for a specific event, whether it's for a new part of your life, whether it's transition. You're a mom, you're a mom, you're a new mom, you're coming back into work after years, or I mean, हम लोग ये सोचते हैं कि ये तो नहीं issue होगा, but I have students who come to me be like, okay, we used to dress like this, हम university में इतने, you know, we used to wear these clothes, अब हम office wear में क्या पहने? So it's and you help women when they are transitioning in their bodies as well. Like let's say if I suddenly put on a lot of weight and if I suddenly lose a lot of weight, and would I be able to use those clothes again? I think so. It is मेरा पहला जो है वो यही है कि let's see what you have in your cupboard. So I mean, you're wearing a white T-shirt that I'm sure you worn with other outfits, you worn with a pair of jeans or whatnot. It's about again for lack of actually as coming across is कि ये तो सिर्फ sustainability ही की बात करती रहती है. Sustainability, Richa, is not just for the environment. It's also for your mental well-being. It's also for the fact कि जब हम अपनी अलमारी के सामने खड़े होते हैं और इतने कपड़े हमें नजर आते हैं तो वो जो एक overwhelm हो जाते हैं. You said it. And वो उस चीज को declutter your mind and हर कोई ये कहता है. Wonderfully said. Wonderfully said. I definitely. It's about that also. ठीक है. So Maryam, shall we move to the main chunk of the questions? Yes, and the first question that we have is कि क्या तीन layering mistakes औरतें करती हैं अक्सर सर्दियों में जिससे आप bulky लगते हो and you don't look smart? You use the word bulky and that is the operative word. असल में देखें सबसे पहले तो ये हम भूल जाते हैं कि सर्दी के कपड़े जो हैं उनका एक purpose है. It's I mean yes we look good, we're following trends and being fashionable and stylish. बट आपने सर्दी और एक स्टॉर्म को भी वेदर करना है और कपड़े जो हैं उनका ये बहुत बड़ा पर्पस है कि आर दे वेदर अप्रोप्रिएट. तो वेस्ट में तो बहुत एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है लेयरिंग का जो कि हमारे यहाँ भी अब काफ़ी इस्तेमाल होना शुरू हो गया है क्योंकि हमारे जो एनवायरनमेंट है अभी राइट नाउ आई थिंक हम people from Islamabad and Lahore and slightly colder regions must also be watching. कराची में जी अजीब किस्म की सर्दी होती है. घरों के अंदर सर्दी होती है. जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको you wanna take. Imagine if I was just wearing a chunky knit over this. And I wasn't wearing this white shirt. Then what would I be like? आप बाहर जाएंगे वो गर्मी लगेगी. लेकिन घर के अंदर आपका दिल करता है एक लेयर हो. तो जो एक मिस्टेक लेयरिंग के साथ हो जाती है वो ये हो जाती है कि अब we tend to bulk it up. तो जो अंदर वाली लेयर है वो आपकी as possibly fitted to your physique and to your so you really have to you have to invest in those pieces. एक ज़माना था रिजा कि वो सिर्फ एक Marks and Spencer and बाहर से कोई आ रहा होता था तो इनर वेयर वो वाला मिलता था. I remember मैं जब यूनिवर्सिटी गई थी तो my dad took me shopping for inner thermals and I was like they're so fugly. I'm not going to wear these but I ended up wearing them. लेकिन जब सर्दी लगती है तो बंदा पहनता है. सर्दी तो लगती है लेकिन the first time I got some money in my hand I went and I bought myself innerwear which could actually just be on its own. अब तो इतना अच्छा innerwear आ गया कि लोग उसको on its own भी पहन रहे हैं. It's coming in neutral colors. Neutral colors actually a lot of places do guys. And I don't know if we can name those places but some really good ones. There's some local brands that are making it. Brands are also doing it. That's what I was going to come to. So एक ज़माना था जब सिर्फ वो बाहर की brands थी और थोड़ा price point भी high था और especially अगर आप पाकिस्तान में लेने की कोशिश करते थे लेकिन अब local भी brands आ गए. अब कोई and Maryam, the best part, sorry to cut you off, is the fact कि लोगों को awareness आ गई है कि आप अच्छा इनरवेयर भी आप ले सकते हो. लोग बना रहे हैं मार्केट में. एंड रिचा इट्स अबाउट दिस कि जब लोग मांगते हैं तो मार्केट भी सप्लाई कर रही है. उसमें जो है ना इनरवेयर आर इन्वेस्टमेंट पीसेस. ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट पीसेस का मतलब ये होता है कि आपने उनमें थोड़ा सा खर्चा किया है और फिर आपने उनको आई डोंट नो आई एम श्योर हर किसी के घर में होता होगा जी वो सर्दियों के कपड़े पैक हो रहे हैं गर्मियों के कपड़े निकल रहे हैं और उनको किस तरह से रखा जा रहा है. तो दैट इज द प्लग इन सस्टेनेबिलिटी का दैट वी नीड.
And speaking of that, Mariam, you're wearing such an amazing skirt, by the way. I've been admiring it for a really long time. And I love the top as well. But what I want to basically know is that how is it that you've put the look together? Okay. What kind of lifestyle you have to choose the things you did? So थोड़ी सी चीज़ मैंने एक जी अच्छी बहुत खूबसूरत स्ट्रेच्ड स्कर्ट पहनी हुई है जो ये कपड़ा अपहोल्स्ट्री का कपड़ा है। ये सिंपल लैंग्वेज में पर्दे का कपड़ा है या सोफे के कपड़ा है। And I went to, you know, so for me, I think it's about, I love fabric. I love, you know, I'm a glut for fabric and cloth. And कभी-कभी की मेरी मदर से मुझे हैबिट मिली है कि वो कपड़ा ले आती थी उनको बाड़े की शॉपिंग से, and then हमें पता नहीं होता था वो एक साल के बाद निकल रहा है, उसके साथ हम कुछ करते थे. I think a lot of people do that. A lot of people do that. They get inspired by the fabric. Yeah, my mom's made a kameez out of table covers also. Good. And यही चीज़ रिजा normalize करनी है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम बस ये box stain, I mean, I'm sure लोग हंस भी रहे होंगे, but ठीक है ना, I'm happy, my family is happy, the mama's happy. No, so, not just that, that's your creative self-expression. The other thing I want to talk about is skirts, and my love affair with skirts started when my mother started stitching skirts for me from my father's, वो जो 1970 की दिहाई की जो सारी bell bottom pants थी ना, वो कपड़ा इतना अच्छा होता था, और मम्मी ने उनको, and my mother used to sew with a pattern. You know, तो हमारे घर में अभी भी पैटर्न्स निकल रहे हैं. मैं तो फिर भी वो सेल्फ अपना कर लिया. You know, मैंने लेटरिंग, I haven't been educated in stitching, but मम्मी ने बड़ी कोशिश की कि तुम सीना सीख लो तो मैं तुम्हें रोज का एक कपड़ा ला के दूंगी. She tried to tempt me. लेकिन स्कर्ट फॉर मी, मेरा जो लाइफस्टाइल है रिजा, इट्स अ वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल. आई टीच एट FC कॉलेज एंड आई एम वन ऑफ दोज फैकल्टी मेंबर्स who's kind of trying to be constantly on the move. I would like to believe the students love me. And I love the feedback I get every day when I'm dressing up braver. Of course. And जब मैं undergrads को पढ़ा रही होती तो my choices are slightly more bold. When I'm teaching older senior students, then I'm not saying I change myself for it, but यार हम different hats पहनते हैं ना. Yes. So you're wearing this right now as I was wearing something different in your daytime. Otherwise, you know, running errands, run around, look, you will be wearing something, maybe the same suit with a pair of trainers. And just kind of throw on the earrings and take this. I love the bling, by the way. Thank you. For you, my love. No, I love it. And this whole outfit is so on point. अगर तुम्हें chance मिले, तो if you could invest in a pair of good white trainers, I'm sure you have somebody like as stylish as you have that. Yeah, I love trainers, probably not even. Skirts for me, I think are a very modest choice. और ये मेरे साथ specially होना शुरू हो गया है कि जब थोड़ा सा मेरा वो मेनोपॉज की तरफ थोड़ी बॉडी जा रही है. And औरतों की बॉडी बहुत चेंज होती है मेनोपॉज के बाद. And we need to celebrate it. और होता क्या है कि कपड़े ही हमें कब लगता है कि अच्छा मैं मोटी लग रही हूँ, मैं पतली लग रही हूँ, मैं ब्लोटेड लग रही हूँ, जब हम वो वाले कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं जो हमें they're not. So वेस्ट में तो जी उन्होंने कहा है टैग कार्ड दिया करें साइज का, क्योंकि साइजिंग का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि ये जो मेन ब्रांड्स हैं इनका तो साइज 16 भी जो है, एक्सेल भी जो है, वो भी इट्स नॉट रिप्रेजेंटेटिव. सो रिप्रेजेंट इज अ वेरी बिग वर्ड नाउ. एंड मेरे साथ ये होने लगा है कि मैं थोड़ी सी थी एक ज़माने में, मैं बहुत वो थी कि अच्छा मेरा वेट क्या है, मेरा साइज का टैग क्या है. अब मैं काट देती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है चीज़ मैं वो पहनती हूँ. ज़बरदस्त. और मेरी and I think we need to empower women like that as well. Thank you. So you know, Mariam, what would you recommend as a ideal winter palette for women? So there was of any age group. I think there was a time when I used to wear a lot of black. In fact, अभी भी power outfit मेरा शायद black में ही है. और काफ़ी सारे लोग हैं जिनको लगता है कि ब्लैक से वो ड्रेन आउट हो रहे हैं, वो उनको थोड़ा डिप्रेसिंग लग रहा है, लेकिन इफ़ इट्स योर कलर गो फॉर इट. बट रिसेंटली का मतलब है पिछले 5-6 साल से नेवी ब्लू हैज़ बिकम माई स्टेपल. सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मेरे पास बहुत अच्छी नेवी ब्लू पतलून हो, नेवी ब्लू इवन शलवार कमीज में भी एक बहुत अच्छा नेवी ब्लू दो पड़े. You were wearing one today in the morning. So I do multiples. You talked about having 2 beige pants. Don't be apologetic. जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, अगर वो एक दफ़ा अच्छी लग रही है तो जाके दोबारा खरीद लें. मेरे पास एक वाइट शर्ट है, लोकल ब्रांड डिड इट, ब्यूटीफुल कट. मैंने दोबारा जाके ली, उसके मैंने सिर्फ बटन्स चेंज कर दिए. उससे ये हुआ कि जब मैंने थोड़ा फेस्टिव करना हो, थोड़ा गोल्ड के साथ करना हो तो आई डू दैट. तो देखें कि हैव फन. इट्स अ लॉट ऑफ फन. Then तुमने मुझसे क्या सवाल पूछा था? I'm sorry, I'm that उस्तानी also. Palette. अच्छा, so color of the season क्या करता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं. वो आपको, लेकिन कलर ऑफ द सीजन ने मेरे लिए क्या किया, लाइक चॉकलेट ब्राउन. आई लव चॉकलेट ब्राउन. आई टोल्ड यू लास्ट टाइम आल्सो यू कैरी इट बिकॉज़ तुम्हारे अंडरटोन में बहुत मेरे पे वो अजीब सा वॉश्ड आउट लगता है. बट अच्छा, वैसे व्हाई डोंट यू टेल पीपल अबाउट द अंडरटोन्स एज वेल? आई थिंक आई एम नॉट अ कलर एक्सपर्ट, बट वन थिंग आई फिगर्ड आउट इज कि मेरे पास ये एक क्रीम टक्सीडो जैकेट थी, क्रीम कलर की है,
और क्रीम मेरे फेस के ऊपर जो है बहुत वॉश आउट लगता है. यू नो व्हाट आई डिड, आई पुट माय बेस्ट कलर नेक्स्ट टू माय फेस. तो जो उसके नीचे मैं शर्ट पहनती हूँ वो वाइट है और क्रीम इधर है, तो द जैकेट इज आल्सो, आई मीन सच अ ब्यूटीफुल कट. अगली दफा बुलाओगे आई विल वेयर दैट. सो वो क्रीम भी आ गया, लेकिन जो फेस पे लाइट आ रही है वो उसी कलर की आ रही है. सो दैट्स द वे टू वेयर ट्रेंड्स. अपनी जो अलमारी को खोल के मैंने कलर कोऑर्डिनेट की हुई है. सो यू नो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द व्हाइट्स एंड द बेजेस एंड गोज टुवर्ड्स द ग्रेज एंड द, यू नो. एंड व्हाट कलर वुड यू हैव द मोस्ट, लेट्स से? Navy blue, whites, navy and grays. Yes, grays, yeah. Grays. But recently more navy blue and a lot of good burgundy. Burgundy, I love burgundy. Is burgundy just a winter color? No, I have ये जो हमारा इतना अच्छा कपड़ा होता है ब्लॉक प्रिंट वाला, हैंड डाइड वाला, उसमें बहुत खूबसूरत लगता है. और हमारी टोन में ना कुछ एक पिलाहट है. मैं बाय द वे बिल्कुल कलर एनालिस्ट नहीं हूँ. मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, अभी तक मुझे नहीं पता मैं विंटर हूँ स्प्रिंग हूँ, हर चीज़ जो अच्छा लगे. और पता है रिजा, मेरा तो ओवर द ईयर्स मेरी जो पिगमेंटेशन चेंज हुई है, तो उससे मुझे वो कलर जो हमें समझती थी टी पिंक बहुत अच्छा लग रहा है लाइट, अब वो मुझे लगता है कि एकदम से निशान. Such a valid point. So please देखें, कोई रूल्स इसके नहीं है. Makes you feel good. तस्वीर जरूर खींचें अपनी. Of course. अपनी तस्वीर अच्छी लाइट में जरूर खींचें, क्योंकि तस्वीर एंड इनर वेयर पे, can we just briefly go back to that? Inner wear guys can be a little tricky because हमें लगता है कि अच्छा हम तो बड़े स्टिमिंग लग रहे हैं. एक दफा मेरे साथ ये टीवी पे हो चुका है. I thought I was looking fantastic, but जब वो मैंने इनर वेयर, क्योंकि मुझे सर्दी लगती है, वो मैंने देखा तो मुझे तो वो बल्कि लग रहा है. अब वो दैट्स द इमेज दैट इज अनफॉर्चुनेटली फॉर विमेन स्पेशली हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो नेगेटिव कमेंट्स है ना वो ज्यादा स्टिकी होते हैं, वो दिमाग में दोबारा दिल में ज्यादा लगते हैं. बस वो यही तो. Let's not even go there. I think most people that have come, they've just said we just ignore it.